اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، قریب ہر انسان یہ بائی پاس آج کل ڈھونڈ رہا ہے۔ بائی پاس کا مطلب یہ ہے کہ کرنا کچھ نہ پڑے لیکن کام ہمارا ہو جائے، محنت ذرا بھی نہ ہو، آمدنی بہت اچھی ہو، اور کام ہم خود اپنا کریں لیکن اس میں بھی ہماری واہ واہی ہو۔ یہ تو چاہتا ہے نا۔ تو اگر یہ کسی سے مالیہ پوچھا جائے یا کہا جائے اچھا بتاؤ کوئی ایسا جگاڑ بتاؤ، کچھ ایسا ہے کہ مالیہ کرنا کچھ نہ پڑے لیکن اس میں جو ہماری خواہشیں ایسا پوری ہو جائیں، تو کہے گا ماں یار تم تو بالکل الٹی بات کرتے ہو، بغیر کیے کچھ تو ہوتا نہیں، کچھ ملتا نہیں، اور تم ایسی بات کہہ رہے ہو، یہاں کیے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، اتنا کرو محنت کرو تو پورا نہیں پڑ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کچھ ایسا بتاؤ اس کو مالیہ بیٹھے کام ہو جائے۔ تو محترم، اسلام میں بہت ایسے کام ہیں کہ اس میں کیا اپنا کام جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا اور راضی ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی بات ہے، یعنی کوئی اپنا کام کرے اور اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہو، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ لیکن ابھی یہ کہنا کہ بغیر کچھ کیے یا کچھ خود اپنا کام کیے ہوئے کچھ ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو اس سے اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ میں اسی بات کیوں نہ تم کو بتاؤں، جو اللہ تعالیٰ تم اپنا کام کرتے رہو، دنیاوی کام، یہ جی ہاں دنیاوی کام کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے اور مالیہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ کو مالیہ تمہارا کام پسند آ جائے، تو وہ تو یہ کہے گا اچھا یار جلدی بتاؤ جو کچھ ہو۔ تو محترم، ہم جو کچھ کام کرتے ہیں دنیا کے اندر، چاہے اپنا مکان بنا رہے ہوں، چاہے اپنے جسم کی دیکھ ریکھ اچھے سے کر رہے ہوں، یا اپنا لباس اچھے سے اچھا اور صاف ستھرا اور پریس کیا ہوا پہن رہے ہوں، تو اس میں صرف اور صرف یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر ہم نے خط نہیں بنوایا اور بال اور مونچھیں بڑے بڑے ہو گئے تو لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ہمارا یار بڑا کنجوس آدمی ہے، دیکھو یہ 30-40 روپے خرچ نہیں کر سکتا تاکہ اپنا چہرہ ٹھیک کروا لے، اپنے خط صحیح کروا لے، تو لوگ یہ نہ کہیں۔ یا ہم جو ہے مالیہ فلاں جگہ جا رہے ہیں کہ تو مالیہ اس لیے بنوا لیں وہاں بہت سے لوگ آئیں گے اور یہ وہاں پر ہم ایسے ہوں گے بڑے خراب لگیں گے، لوگ کہیں گے یار بڑا ایسا آدمی ہے، دیکھو اس کو ذرا بھی پرواہ نہیں یہاں آیا۔ تو اکثر شادیوں اور باراتوں میں جب کہیں ایسے جانے کی جگہ ہوتی ہے یا باہر کسی محفل میں کسی اچھے جگہ جانے ہوتی ہے تو ہم اپنا لباس، اپنے بال، اپنا خط وغیرہ سب اچھے سے دیکھتے ہیں شیشے کے اندر، اور مالیہ جب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جب اپنا دل اندر سے ہاں ٹھیک ہو، بالکل چکا چک معاملہ ہے، تو بہرحال سر سے لے کر پیر تک ٹوپی ہماری گندی تو نہیں ہے، جوتے میں پالش ہے کہ نہیں ہے، اور صرف یہی نیت دل میں ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے ٹوپی تو بڑی بہترین رکھے ہوئے لیکن جوتے تو اس کے اوپر یعنی پالش بھی نہیں کرا سکا، ارے لوگ کیا کہیں گے، لوگ مالیہ گری نگاہ سے دیکھیں گے۔ یا دوسری نیت کیا ہوتی ہے، لوگ ہم کو بہت اچھا کہیں، بہت بہترین کہیں، بہت بھلا کہیں، بہت بڑا آدمی کہیں، ہم اس لیے اپنے کو ٹپ ٹاپ میں رکھتے ہیں۔ مکان بھی بنوا رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی یہی نیت ہوتی ہے کہ ہاں مکان ایسا بنواؤ کہ گاؤں میں نکلے نہیں، اور جو کوئی باہری آدمی آئے پوچھے یہ مکان کس کا ہے، ارے کہیں گے یہ فلاں صاحب کا ہے، کہنا اچھا اور واہ بہت ہی عالیشان مکان بنوایا، ایسا تو کسی کا گاؤں میں نہیں۔ اگر یہ دل میں نیت ہے ہاں تو یہ بھی نیت جو ہے اچھی نہیں، یہ تکبر کی ہے، گھمنڈ کی ہے، غرور کی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر مان لیا کپڑوں میں اگر ہمیں گھمنڈ اور غرور کی نیت سے ہم نے ان کو استعمال کیا
वो भी अल्लाह ताला को ना पसंद है। ना वो पहली बात पसंद है कि अल्लाह ताला मकान बनाया और उसमें ये चीज़, और यही हाल करीब करीब हर चीज़ में है। जो भी इंसान काम करता है, अगर दिल में ये ख्वाहिश है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमको बड़ा समझें, लोग हमको कंजूस ना कहें, लोग हमको ये ना कहें, लोग हमको वो ना कहें, और तो अगर ये सोच करके वो काम करवा रहा, और करवाना ही है, अरे भाई खत बनवाना तो भाई बनवाना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर नीयत को चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, बस वहीं से मामला सही हो जाता है, और वहीं से अल्लाह तबारक ताला एक बात ख़्याल में रहती है तकब्बुर घमंड वाली, और लोग हमको बड़ा कहें, ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो इसमें अल्लाह ताला नाराज़ होता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ही तुमको बड़ा बनाया है, मालदार बनाया है, कि किसी को गरीब बनाया है, तो इसमें वो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी की बात है। इसमें लोगों को दिखाने की जो नीयत होती है वही गलत है। हाँ, तो बात ये चल रही थी, जब हम अपना ख़त बनवाने का इरादा करें तो ये समझें, जी हाँ, अब गौर से सुनने की बात है, ये दिल में एक वो नीयत रख करें कि देखो अल्लाह ताला खूबसूरत है, और सब ये मानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बात मानता है कि अल्लाह ताला खूबसूरत है, और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। तो हम अपने बाल, अपनी दाढ़ी, अपना ख़त, अपना ये जब कुछ कर रहे हैं तो इसलिए बनवा रहे हैं, इसलिए ठीक करवा रहे हैं कि हम अपने को अच्छे नहीं लग रहे हैं। जब हम अपने को अच्छे नहीं लग रहे हैं तो अल्लाह ताला को क्या अच्छे लगते होंगे? जिस तरह से हम अपने को ख़राब लग रहे हैं, अल्लाह ताला को हमको देख करके वो भी उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो अल्लाह ताला खूबसूरत है, जमील है, और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। देखो थोड़ी सी नीयत चेंज करने पर और कितना बड़ा फ़र्क हो गया। अब हम मान लिया मकान अपना बनवा रहे हैं, तो इस नीयत से बनवाए, हम अपना खूबसूरत मकान इसलिए बनवा रहे हैं कि मान लिया अल्लाह ताला को खूबसूरत चीज़ पसंद है, अल्लाह ताला खूबसूरत है, और हम मकान इसलिए अल्लाह तबारक ताला को खूबसूरती अच्छी है और पसंद होती है, ये नियत कर लें। और जहन में ये भी बात बिठा लें कि हम ये जो बाहरी कमरा बनवा रहे हैं, ये अपने मेहमानों के लिए बनवा रहे हैं। हालांकि इस्तेमाल तो हमारे में इस्तेमाल तो हम करेंगे, और मान लिया जब का आ जाएंगे वो भी बैठ जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन यही है, नहीं, ये वाला कमरा जो है ना, ये बाहर वाला ये ख़ास है, ये मेहमानों के लिए है। जब मेहमान कोई बाहर से आएगा, यहीं बैठेगा, यहीं आराम करेगा। और ये जो मान लिया सीवर बनवा रहे हैं बाहर ना, ये मान लिया मेहमानों के लिए है, ताकि मेहमानों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और घर के अंदर दाखिल होने की भी ज़रूरत ना पड़े। अगर ये दिल में नियत है, अल्लाह ताला खुश होता कि देखिए। और इसी तरह से हम जहाँ भी अपना दवाखाना हो या कोई भी दुकान मकान हो, जगह पड़ी हो, तो वहाँ पर एक मान लिया बैतुल खला ऐसा बनवा दें कि जहाँ पर ये हो कि अगर कोई मान लिया आएगा काम तो हमारे, लेकिन दिल में ये कर लें कि अगर कोई आएगा ज़रूरतमंद बेचारा, अचानक किसी का पेट ख़राब हो जाएगा और उसको मान लिया लेटरिन की हाजत होगी, तो वो फ़ौरन इसी में चला जाएगा, अपनी ज़रूरत पूरी कर लेगा। ये नियत दिल में रखें, चाहे उसमें कोई भी ना जाए, बहरहाल दिल में ये नियत कर लें तो अल्लाह ताला देखो हमारे बंदों के लिए ये बंदा की कितनी कोशिश कर रहा है। मोहतरम, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वाहवाही की नियत हो कि लोग हमारी तारीफ़ करें। दूसरी नियत ये हो लोग हमको कंजूस और गंदा और ख़राब इंसान ना समझें। इसीलिए तीसरी है कि हम दूसरे के मामलिया लोग हमको क्या कहेंगे, और ये तमाम चीज़ें अगर दिल में हैं तो उसमें सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ भी, बस वो तो काम तो होना है, लेकिन सवाब कुछ भी नहीं मिलेगा, ना अल्लाह ताला राज़ी होगा। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नियत को बदल दें कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह वास्ते कर रहे हैं। यही बात है। ये मान लिया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करते थे। एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसकी दाढ़ी जो है बड़ी बड़ी थी, उलझी हुई थी, यानी मालिक कंघा नहीं किया होगा,
जैसे कि आजकल हमारे कुछ अहबाब, कुछ दोस्त, कुछ रफ़ीक ऐसे भी मिलते हैं, और वो जो मान लिया जब से दाढ़ी उनके निकलती है और मरते दम तक वैसे ही उसको छोड़ देते हैं, और मान लिया ये कहते हैं कि देखो नहीं इसमें कैंची लगना और मान लिया लगना ये नहीं 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 कभी नहीं। तो कुछ मान लिया टेढ़ी होती है, कोई मेढ़ी होती है, अरे वो तो हो ही जाती है, सबकी हो जाती है अगर उसको सही से दुरुस्त न किया जाए। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए और उन्होंने कहा, हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका चेहरा देखा, कहा कि जाओ तुम्हारी दाढ़ी बड़ी उलझी खुलझी है और ज़रा मुच्छें भी बढ़ी हुई हैं, जाओ और इनको मान लिया कंघी से ठीक करो, और जो मान लिया उलझे खुलझे बाल हैं उनको कैंची से काट दो, उनको कैंची से काट दो। ये चीज़ कही, अगर ये उलझी खुलझी दाढ़ी और जैसे निकली वैसे जैसे टेढ़ी हो गई वैसे ही छोड़ते चले गए और दिल में ये कहा कि हाँ हमने अभी तक आज तक इसमें कैंची नहीं छुआई है, तो ये तो खुद अपनी मनमाना तरीका है, मनमानी सोच है। कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कहा कि मान लिया जाओ इनको सही करो, दुरुस्त करो, यानी अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने को टिप टाप से रखा है, अच्छा से रखा है। कभी ऐसे नहीं हुए हैं कि कभी कभार जैसे हम लोग मान लिया हो जाते हैं, मान लिया उलझी खुलझी दाढ़ी ये वो, इसलिए ताकि ये चीज़ अल्लाह ताला को नापसंद है, जो अपने को टिप टाप से नहीं रखता, सही से नहीं रखता, अपने को बिल्कुल यूं ही छोड़ देता। तो अल्लाह ताला से दो, अल्लाह ताला हमें कहीं न सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अपने चेहरे मोहरे लिबास वगैरह 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 को अच्छे से बनाए रखे। और ये मान लिया दिल में सिर्फ़ और सिर्फ यह बात दिल में रखें कि अल्लाह ताला खूबसूरत है और अल्लाह ताला को खूबसूरती पसंद है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।